Wheatstone bridge, we have studied already the principle of Wheatstone network, in which the four resistances are connected in the quadrilateral manner, and the balancing condition of that four resistances becomes P by Q is equal to S by R when the current flowing through that galvanometer becomes what? 0. इस तरह का नेटवर्क था अपना वो गैल्वेनोमीटर, फोर रेजिस्टेंसेस P Q R S, यहाँ से सेल था और यहाँ पर लगी थी P K. ओके, A B C एंड D. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था इसका? जब गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट क्या होगा? 0. उस समय नेटवर्क कैसा रहता है? बोले अपन ने बैलेंस्ड, और बैलेंसिंग कंडीशन थी क्या थी? P by Q इक्वल टू S by R. So this is the Wheatstone meter bridge which works on the principle of that Wheatstone network again. The construction of that meter bridge is like this. It consists of a long uniform wire or a uniform wire having length 1 meter stretched on the meter scale. This is the wire AB which length is how much? 1 meter. कितनी लेंथ है उसकी? 1 मीटर. यूनिफॉर्म वायर 1 मीटर लेंथ यूनिफॉर्म वायर इज ट्रेस्ड ऑन दैट मीटर स्केल, एंड इन बिटवीन द टू एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप्स, टू एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप्स आर कॉपर स्ट्रिप्स विच आर फिक्स्ड ऑन द वुडन बोर्ड. एक वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड के ऊपर क्या है? यहाँ पर इस तरह से ये दो एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप्स है, उसके बीच में क्या है? यूनिफॉर्म वायर जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, and below the wire there will be provided the scale, meter scale, to measure the length of the wire. Then in between that two L-shaped metal strip there will be mounted or placed third metal strip, okay, which produce two gaps in between these two L-shaped metal strip. One that is the left gap and this is called as right gap. ये हो गई left gap, ये हो गई right gap. Okay. Then in the left gap, unknown resistance which value is to be determined is connected, and in the right gap there will be connected the variable resistance or resistance box. Right gap में क्या लगाया हुआ यहाँ पर? Variable resistance or the resistance box. Now in between the common point of that unknown resistance and the resistance box, suppose that is the point B, a jockey is connected. This is the jockey, means pencil type conductor होता है जिसको क्या बोलते हैं? jockey is connected through the galvanometer, through the galvanometer of resistance G, which will be get slide on that wire AB. मीन्स ये अननोन रेजिस्टेंस X और रेजिस्टेंस बॉक्स में का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर B दिख रहा है, वहां से क्या कनेक्ट करना है? जॉकी थ्रू द galvanometer, which jockey will be get slide on that wire AB. Okay, across the wire AB, a cell of EMF E, key K and rheostat RH is connected to adjust the current. Okay, this is the construction of that Wheatstone meter bridge. ठीक है, मीन्स दो एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप है, काय के ऊपर फिक्स किया उसको अपन ने? वुडन बोर्ड के ऊपर. देयर विल बी स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, below which there will be provided scale to measure the length of the wire. Then third metal strip will be get mounted in between these two L-shaped metal strip which produces left gap, right gap. Left gap में क्या लगा है? unknown resistance. Right gap में क्या लगा है? resistance box. दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहां से क्या लगा है अपने? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का अनदर टर्मिनल कहाँ पे? जॉकी को. जॉकी क्या कर रही है यहाँ पर? वायर AB पे स्लाइड कर सकते हैं उसको अपन, और वायर AB के अक्रॉस क्या लगा है? सेल की K and rheostat RH. Now how the unknown resistance value will be get determined from that meter bridge? For that this key K is closed. Key K is closed. Current is allowed to pass through that complete meter bridge like this. Okay, current flow होगा. A suitable resistance is selected from the resistance box. ठीक है, क्या करना है? इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना था. अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाया अपन ने? लेफ्ट गैप में. राइट गैप में क्या है बोले अपन ने? रेजिस्टेंस बॉक्स. पहले क्या करना है? इस की के को क्लोज करना है और करंट को क्या करना है? इस कंप्लीट सर्किट में से पास करना है. देन
A suitable resistance is to be selected from the resistance box. R be the value of resistance which will be get selected from the resistance box. And after that, this jockey जो क्या बोल रहे हैं अपन इस वायर ए बी पे स्लाइड कर सकते हैं, is touched at various point on the wire AB and the point is selected at which that galvanometer shows null deflection. इस जॉकी को इस वायर पे डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करना है और ऐसा पॉइंट निकालना है कि उस पॉइंट पर जॉकी टच करने के बाद में गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन, मींस जीरो डिफ्लेक्शन. और गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब करंट पासिंग थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो एंड द नेटवर्क बिकम्स व्हाट, बैलेंस. एंड सपोज दिस पॉइंट इज D, length of the wire from that A to D is suppose Lx and the length of the wire from that D to B is suppose Lr. Okay, so here जैसा कंस्ट्रक्शन यहां पर व्हीटस्टोन नेटवर्क का था, सेम कंस्ट्रक्शन यहां पर मीटर बेस का भी बन गया है. देखो, इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी क्या था, रेजिस्टेंस P. तो इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी क्या आ गया, अननोन रेजिस्टेंस X. इन बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी रेजिस्टेंस Q. तो इन बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, सॉरी पॉइंट सी था, इन बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी देयर इज व्हाट, रेजिस्टेंस R. देन ए और डी के बीच में क्या है, S. तो यहां पर देखो ए और डी के बीच में क्या आ गया, वायर ऑफ लेंथ Lx. सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर ऑफ लेंथ AD इज सपोज RAD. और डी और बी के बीच में क्या था, यहां पर C और D के बीच में क्या था, R. उसी तरह से यहां पर भी क्या आ गया, C, दिस इज B. C और D के बीच में क्या है, लेंथ ऑफ वायर LR and resistance of that wire is suppose RDC. मीन्स जिस तरह से व्हीटस्टोन नेटवर्क है वैसा ही यहां पर बैलेंस व्हीटस्टोन मीटर भी अपने को दिख रहा है, क्योंकि यहां पर बोले थे अपन ने करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो, देन P by Q इक्वल टू S by R. तो उसी तरह से यहां पर भी P by Q इक्वल टू S by R अपन अप्लाई करेंगे. तो ये हो गया समझ लो अपना P, ये हो गया समझ लो Q, ये हो गया समझ लो S, और ये हो गया क्या, R. सो देयरफॉर X by R is equal to, यस मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ Lx, जिसको क्या बोले अपन ने RAD, एंड यस मीन्स सॉरी हाँ, R मीन्स क्या है यहां पर, दिस वन DC वायर जिसकी लेंथ कितनी है LR, उसका रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं अपन, RDC. ओके, सो हियर नेटवर्क बैलेंस क्यों बोले, क्योंकि जॉकी इस पॉइंट डी पर टच करने के बाद में क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या हो गया, जीरो. ओके, नाउ वी नो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वायर कैसा था, यूनिफॉर्म था, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, सेम. सो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ Lx मींस RAD बोले, तो RAD इक्वल टू क्या होगा यहां से, X by R इक्वल टू RAD मीन्स रो LX by A अपॉन RDC मीन्स लेंथ कितनी है इसकी, LR मीन्स रो LR अपॉन A. ठीक है, वायर सेम मटेरियल का इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वायर यूनिफॉर्म है इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन सेम. दिस विल बी गेट कैंसल्ड. सो X by R is equal to Lx by Lr. So X equal to R into Lx by Lr, and by using that formula we can determine the value of that unknown resistance. But there is the possibility of error. How? If that wire is not uniform. अगर ये वायर लिया ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यहां पर अपन ने क्या बोले, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म होगा, इस तरफ उसकी थिकनेस कम होगी, इस तरफ थिकनेस ज्यादा होगी, तो इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, तो इस रेजिस्टेंस पे इफेक्ट गिरेगा कि नहीं गिरेगा. इस पहला पॉसिबिलिटी ऑफ एरर क्या है यहां पर, इफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म. सेकंड वन, दिस वायर विल बी गेट फिक्स्ड इन बिटवीन दैट पॉइंट A and C. ओके, इट विल बी गेट सोल्डर्ड देयर. अगर सोल्डर किया है तो क्या होगा, देयर विल बी गेट एडेड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस व्हिच वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट इफ द null point is not selected accurately. These are the possibilities of error. But how this error will be get eliminated? By a very simple method.
we can repeat the same experiment by interchanging the position of unknown resistance and the resistance box. क्या करेंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, इधर ले जा लेंगे अननोन रेजिस्टेंस कोणते गैप में, राइट गैप में. सेम प्रोसीजर से फिर से अपन यहां पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. सेकंड वन, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपन रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट रेजिस्टेंस शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड at the 1/3 of the length of the wire, means in between the 34 centimeter to 66 centimeter. क्योंकि टोटल वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 34 से 66 के बीच में नल पॉइंट मिलना चाहिए. मीन्स अगर ये पॉइंट डी यहां पर मिल रहा है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ का ये 34 से कम नहीं होना चाहिए. मीन्स 34 से ज्यादा चलेगा, और इधर कहीं मिलता है तो 66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मीन्स दैट balancing point should be obtained in between the 34 centimeter to 66 centimeter. इसके बीच में मिलना चाहिए. Okay, so in this way the errors which are obtained there will be get eliminated by using that meter bridge. Again there is the next use of that meter bridge. We can determine the resistance of the galvanometer. For that there will be the Kelvin's method, in which directly the galvanometer is connected in the left gap. This will be get neglected from here. Again here will be used the equal deflection method. Okay, formula becomes same, only here you will get the LG upon LR as it is. यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G. ओके, मीन्स यहाँ पर जैसा इस की को क्लोज करेंगे अपन, यहाँ से करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा. विदाउट टचिंग द जॉकीज गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नोट करके रखेंगे अपन. जैसा 10 डिग्री है तो 10 डिग्री डिफ्लेक्शन नोट करके रखेंगे. आफ्टर दैट वी विल टच द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वायर AC and we will select the point at which the galvanometer shows again same deflection. Means without touching the jockey, अगर वो 10 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहा था तो इस वायर AC के ऊपर ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है कि उस पॉइंट पर जॉकी टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर फिर से क्या करेगा, आप देखो सेम डिफ्लेक्शन शो करेगा. नॉट लेस देन 10, नॉट मोर देन 10. तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड. क्या बोला था उसको, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, और केल्विन्स मेथड नाम है उसका. ओके, तो बाकी सब प्रोसीजर सेम है, सिर्फ फार्मूले में यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर G, और बाकी सब सेम, फार्मूला सेम. ओके, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर कि अननोन रेजिस्टेंस निकालते समय नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज किए थे, और इस केल्विन्स मेथड में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालते समय क्या कर रहे हैं अपन, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, एडवांटेज उस मेथड का ऐसा है कि अगर यहां पर भी गैल्वेनोमीटर लगाते, यहां पर भी गैल्वेनोमीटर लगाते, तो अपने को क्या लगेगा, यहाँ पे 2 गैल्वेनोमीटर की नीड रहेगी टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर. वी अगेन नीड अनदर गैल्वेनोमीटर. लेकिन केल्विन्स मेथड में क्या हो रहा है, एक ही गैल्वेनोमीटर से काम हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस निकालना है उसी को डायरेक्ट लेफ्ट गैप में लगा दिया अपन ने. सो इन दिस वे दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज. ओके, थैंक यू.